Good afternoon, everyone. Dr. Dekar, Mr. Girish Desai, Mr. Farah, ma'am, all faculty members, and all my dear friends. It's indeed a great pleasure for me to be here with all of you this afternoon and speak to you on a topic called how to reach pinnacle of success in life. और in other words, बुलंदियों कैसे छुएं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको congratulate करूँ, आपको compliment करूँ कि for taking admission into the MBA program, and I'm sure that this is a beginning of real life of every one of you. As I would feel that these 2 years that you're going to spend in this institute are going to be the most crucial years of your life. And why do I say this? Is because कि ये 2 सालों में जो आप करेंगे वो डिसाइड करेगा कि आप आपकी बाकी जिंदगी में क्या करेंगे। Are you with me? ठीक है? तो ये 2 साल आपके इतने क्रिटिकल हैं, इतने क्रूशियल हैं कि ये 2 सालों में जो भी आप करेंगे उस पर डिसाइड करेगा, उससे पक्का होगा कि आप अपनी बाकी जिंदगी क्या करेंगे। That means ये 2 जो साल हैं, these 2 years are very very crucial years of your life. Like you, I did my MBA 30 years back. I did my MBA from Symbiosis Institute of Business Management. I passed out in 1984. So exactly 30 साल हो गए मुझे। 30 साल से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। और मैं कई बार पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि गाइडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। You know, it is very very important in life that we must get proper guidance from time to time. Because अगर गाइडेंस बराबर हो तो एक शिवा एक शिवाजी महाराज बन जाता है, राइट? सो अगर समर्थ मिल जाए तो ये शिवा शिवाजी महाराज बन जाता है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडेंस, दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ mentoring. And I'm very happy because I thought कि जब मैंने MBA किया और मुझे लगता है कि अगर जिस तरह की गाइडेंस हमको मिली उससे बेहतर गाइडेंस आपको मिले ताकि आप आपके लाइफ में और आगे और आगे और आगे जा सकें। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपसे कुछ सूत्र शेयर करूंगा। I want to share some golden points with you as to how to become successful in your life, how to achieve the pinnacle of success in your life. और मेरा ये जो प्रोग्राम है आपसे एक सवा घंटे का, तो मैं आपको लेक्चर देने वाला नहीं हूँ। It's going to be an interactive session. It's going to be a participative session. मतलब क्या? मतलब ये कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि आप बड़े उत्साह के साथ उन सवालों का उत्तर दें। Give me the answer of the question that I asked you with a lot of enthusiasm. और बाद में of course I will also give you a chance to ask me also a lot of questions. So before we start, let me just share with you one incident. I only hope it was true. You know, once in a plane, 4 passengers were flying together, and these passengers were परवेज मुशर्रफ, बराक ओबामा, एक छोटा सा हिंदुस्तानी बच्चा and Pope. So these 4 people were flying together in a plane. Unfortunately, this plane developed a technical problem, so it had to crash land. And unfortunately, there are only 3 parachutes. So 3 पैसेंजर, 4 पैसेंजर, 3 पैराशूट और उनका प्लेन करने वाला था क्रैश। तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि भाई कितने लोग बचेंगे? 3, और एक आदमी ने अपनी जान गंवानी पड़ेगी विद द प्लेन। So they immediately had an emergency meeting. उन्होंने कहा देखिए हम लोग 4 हैं, हमारे पास 3 पैराशूट हैं, हमारा प्लेन क्रैश करने वाला है। इसका मतलब ये है कि हमें से सिर्फ 3 लोग ही बच सकते हैं, किसी एक आदमी ने अपनी जान गंवानी पड़ेगी विद द प्लेन। तो क्राइटेरिया ये है कि हमें से जो लोग इंपॉर्टेंट हैं वो लोग एक पैराशूट उठाएंगे, जंप एंड सेव देयर लाइफ। चौथा आदमी जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, he will have to die with the plane. So immediately Barack Obama got up. He said, "Look, I'm the president of United States of America. I'm the most important person on this earth. I've got all the rights to survive." So he very authoritatively picked up one parachute, jumped, and saved his life.
तो परवेज ने सोचा कि जिस तरह की धुलाई मेरी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर होती रहती है, इंपॉर्टेंस के मामले में हु नोस कि अपनी ये बच्चे के सामने भी गिनती हो कि ना हो, सो व्हाई टेक ए चांस। परवेज ने इधर देखा उधर देखा, धीरे से एक पैराशूट उठाया, जंप एंड सेव हिज लाइफ। So now 2 passengers, Pope and the child and 1 parachute. तो पोप ने बच्चों को बुलाया और बोले देखो बेटा, I have lived my life, so you don't worry about me. We still have 1 parachute left. You take it, jump and save your life. तो बच्चा बोलता नहीं फादर, हमारे पास अभी भी 2 पैराशूट हैं, वो परवेज अंकल जल्दी जल्दी में मेरा स्कूल बैग लेके नीचे। तो देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको कि हम सबका पोटेंशियल एकदम सेम है। और मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी ऊंचा उठा के नहीं बोल रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं कि आपका मेरा हम सबका, और जब मैं बोलता हूं हम सबका, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो बैठे हैं रूम में वो, इसका मतलब सब लोगों का, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका पोटेंशियल एक है, एक जैसा है। जरूरत किस चीज की है? जरूरत इस चीज की आप अपने पोटेंशियल को तरीके से इस्तेमाल करें, उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाएं, उसको पूरा निखारें। और अगर हम उसको पूरा निखार पाते हैं तो बिलीव मी, आप नरेंद्र मोदी का हो या बराक ओबामा का हो या लक्ष्मी निवास मित्तल का हो या अमिताभ बच्चन का हो या सचिन तेंदुलकर का हो, कोई भी कहो, वो भी एक दिन आपकी तरह किसी क्लास में बैठे थे, यस और नो? सो वो भी लोग आपकी तरह के क्लास में बैठे थे। किसको मालूम था कि जब नरेंद्र मोदी किसी क्लास में पढ़ रहे होंगे, किसको मालूम था कि ये बच्चे एक दिन जाके पीएम बने? किसी को मालूम था क्या? तो किसको मालूम है कि आज की तारीख में आप में से जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनमें से बहुत सारे लोग, और क्यों बहुत सारे के सारे लोग आने वाले दिनों में उतनी ऊंचाइयों को छुएं? क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए हमको क्या करने की जरूरत है? इसके लिए हमको सबसे पहले तो गणपति बप्पा को याद करने की जरूरत है, राइट? क्योंकि वो विघ्न रहता है और वो सारी दुनिया की समस्याओं का समाधान करते हैं, और गणोत्सव का माहौल है, तो मैं सबसे पहले आपको उसकी बधाई देना चाहूंगा और इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा वो ये कि आपको क्या लगता है कि जीवन में कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? सर, हार्ड वर्क, गोल, concentration, successful, aim, dedication, education, very good education, yeah, guidance, of course, guidance, discipline, ability, consistency, very good, knowledge, of course, very good knowledge, passion. Please join your feet, give a big round of applause to everyone. Very good. I'm so happy कि आप सबने जो कुछ भी कहा, all that you said is what you need for being successful in your life. All that you have said is what we need for reaching to the pinnacle of success. And let me tell you a story. You know, एक दिन Dronacharya was teaching to his students, and the students were 5 Pandavas, 5 पांडव, उनको धनुर्विद्या सिखा रहे थे। और अचानक से उन्होंने 5 पांडव को बुलाया और युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुम मेरा धनुष उठाओ। भीम से कहा, भीम तुम मेरे तीर उठाओ। फिर अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम एक कपड़े का पीस का टुकड़ा अपने हाथ में ले लो। और नकुल सहदेव से कहा, नकुल सहदेव तुम जाके कुछ अपने सफरचंद लेके आ जाओ। तो जैसा गुरु का आदेश था, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव ने गुरु के आदेश का पालन किया। युधिष्ठिर ने धनुष उठाया, भीम ने तीर उठाए, अर्जुन ने कपड़ा उठाया और नकुल सहदेव ने एप्पल सफरचंद अपने हाथ में लिए और गुरु जी के सामने आ गए। और अब द्रोण ने कहा, चलो मेरे साथ।
तो बच्चों को कुछ समझ आ रही, छोटे छोटे बच्चे, they could not understand as to what the master is having in his mind, but they followed as an obedient student. All of them followed the master, and Drona said, "Come with me." वो पांचों बच्चों को लेके द्रोण चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और एक जंगल में पहुंचे। और एक जंगल में पहुंचने के बाद उन्होंने बच्चों से कहा, यहां ठहरो। बच्चे अभी तक भी मन में सोच रहे थे कि गुरुदेव के मन में क्या है, क्या गुरुदेव करना चाहते हैं, क्या गुरुदेव बताना चाहते हैं। They were just thinking. And then Drona said to Nakul Sahdev, ये जो तुम सेब अपने साथ लेके आए हो, इस सेब को उस सामने की जो पहाड़ी है उस पर जाके रख दो। नकुल सहदेव गुरु की आज्ञा सेब को लेके सीधे गए और पहाड़ी के ऊपर जाके रख दिया। अब उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर मेरा धनुष मूर्ति मुझे दो। युधिष्ठिर ने धनुष को साफ किया और गुरुदेव के हाथ में थमा दिया। अब द्रोण ने भीम से कहा, भीम मेरे कमान तीर दो। भीम ने गुरुदेव की आज्ञा मानी और तीरों को साफ किया और गुरुदेव के हाथ में थमा दिया। और फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब तुम एक काम करो, अब तुम ये जो कपड़ा लाए लेके आए हो ये मेरी आंखों के ऊपर इसको बांध दो। Now the Pandavas understood, oh yeah, what the master is trying to do today. Master has been teaching us archery for all these years. He has taught us many techniques, how to aim, how to take the aim and hit your target. But today Master is going to teach us a new technique, how to hit your target with your eyes blindfolded. The boys got very excited. They started imagining, now the Master is going to hit the target blindfolded. And उसके बाद the master will tell us as to how to do it. And the boys started imagining क्योंकि पूरे गांव में जा रहे हैं, आंखें बंदी हैं और सब जगह वो निशाना लगा रहे हैं। The boys were very excited. द्रोण ने तीर को धनुष के ऊपर रखा, आंखें बंदी हुई हैं और सेब की तरफ निशाना साधा और द्रोण ने string को he kept on pulling it, eyes are closed, and Drona kept on pulling, and the boys holding their breath, so anxious, with a lot of anxiety, were thinking that now Master is going to release the string, and the string is going to hit the apple, and as soon as the string hits as soon as the arrow hits the apple, the Master is going to tell us as to how to hit your target blindfolded. So the boys were very excited, and the Drona kept on taking and kept on pulling the string, and suddenly he released it. And the arrow exactly went away 500 yards away from the apple. सीधा तीर एप्पल से 500 गज दूर जाके गिरा। The boys could not believe it. Master, he cannot miss the target. So they felt embarrassed कि छोटे बच्चों की प्रेजेंस में इतना बड़ा गुरु अपना निशाना चूक गया। The boys felt so embarrassed and they tried to hide their embarrassment. युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, गलती मेरी थी, it was my mistake. Maybe I did not clean the bow correctly, and that's why when you were aiming, it's your hand slipped from the bow and you missed your target. भीम से नहीं गुरुदेव गलती मेरी है, मैंने आपको जो तीर दिए वो तरीके से साफ नहीं किए और इसलिए जब आप उसको पुल कर रहे थे आपके हाथ से वो स्लिप हो गया और आप अपना निशाना चूक गए। अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुदेव गलती मेरी है, शायद मैंने पट्टी जो आपकी आंखों पर बांधी वो इतनी टाइट बांधी कि उसकी वजह से आपके सिर में दर्द हुआ और उस दर्द की वजह से आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ और आप निशाना चूक गए। नकुल सहदेव बोले, नहीं गुरुदेव शायद गलती हमारी है, हम जो सफरचंद लेके आए थे वो शायद सड़ा हुआ था, उसकी बात आपकी नाक तक पहुंची और आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ और आप निशाना चूक गए। द्रोण ने पांचों बच्चों को कहा, एक लाइन में खड़े हो जाओ। पांचों बच्चे लाइन में खड़े हो गए और द्रोण ने एक खींच के चांटा पांचों बच्चों के गाल में मारा और कहा कि बेवकूफों, जीवन में एक मैसेज क्लियरली समझ लो कि तुम उस लक्ष्य को कभी भेद सकते नहीं जिस लक्ष्य को तुम देख सकते नहीं।
You can never hit a target that you cannot see. And that is why the first thing that you and I need to do well in life is to know the target. Remember, if I don't know where I have to go, will I ever reach there? And the answer is no. अगर मुझे मालूम नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं कितना भी चलता रहूं, लेकिन मैं वहां पहुंचूंगा नहीं जहां मुझे पहुंचना है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि मुझे कहाँ पहुंचना है। So first point, first सूत्र for doing well in life is that you and I must know of our purpose. Right? So I'm going to request all of you to please, if you have your paper and pen with you, please write down these points. The first thing that you and I need for reaching the pinnacle of success is to know the purpose of your life. Be aware of your purpose. जीवन का मकसद क्या है? What is that I want to achieve in my life is what I must know, and why I must know, because if I don't know a target, I can never hit. I can never hit a target that I cannot see. The second sutra is optimize your 4 key resources. And let me tell you a secret. आपको मालूम है कि जिसको हम परमपिता परमेश्वर कहते हैं, अब हम उसको किसी भी नाम से बुलाएं, वो परमपिता परमेश्वर हम सभी को जब इस दुनिया में भेजता है तो वो 4 रिसोर्सेज के साथ में भेजता है। The Almighty, when He sends us on this earth, परमपिता परमेश्वर कहो या मदर नेचर कहो, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास 4 की रिसोर्सेज होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो 4 की रिसोर्सेज हैं, ये 4 की रिसोर्सेज परमेश्वर देने में किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये 4 रिसोर्सेज परमेश्वर सबको बराबर से देता है। ये 4 रिसोर्सेज, if I can give you the example once again, the same example, these 4 resources are with Narendra Modi, they are with Barack Obama, they were with Mahatma Gandhi, they were with Nelson Mandela, they were with Mother Teresa, they are with every one of you, they are with Ratan Tata, Rahul Bajaj और मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। और ये 4 रिसोर्सेज आपके पास में भी है। आपको मालूम है 4 रिसोर्सेज कौन से हैं? Which are these 4 resources? Yeah, say it louder. Energy, okay. Energy. Time, yes, of course, time. Mind, yeah, mind, yes, very good. Hardworking, okay. Will, okay. Will, okay. What else? 4 रिसोर्सेज। अब देखिए, आपके पास में है और आपको मालूम नहीं। और याद रखिए, अगर मेरे पास कोई चीज है और मुझे मालूम नहीं है तो क्या मैं उसका इस्तेमाल करूंगा? The answer is no. अगर आपके घर के पीछे एक बड़ा सा खजाना दबा हो और आपको मालूम नहीं है कि वो खजाना है, तो आप क्या करेंगे? आप आएंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे, वो खजाना वहीं की वहीं रहेगा, आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। So what are these 4 resources? अब मैं आपको बताऊं कि अल्टीमेटली हम लाइफ में कितने आगे जाएंगे, हाउ फॉर वी गो इन अवर लाइफ विल डिपेंड ऑन हाउ एफिशिएंटली, हाउ इफेक्टिवली वी यूज दीज 4 रिसोर्सेज। एंड दीज 4 रिसोर्सेज आर नंबर 1, एंड बिफोर आई टेल यू दैट नंबर 1, लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन कि अगर कल को आपकी रतन टाटा जी से मुलाकात हो और रतन टाटा जी आपसे पूछें एक छोटा सा सवाल कि मेरी फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री में मशीन्स हैं, आप मुझे बताइए कि मैं उन मशीनों को कितने घंटे चलाऊं? 8 घंटे चलाऊं कि 16 घंटे चलाऊं कि 24 घंटे चलाऊं? तो क्या होगा आपका आंसर?
24 आवर्स, राइट? अगर रतन टाटा आप पूछते हैं कि भाई ये मेरी मशीन है तो मैं को कितने घंटे चलाऊं, तो आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा 24 आवर्स। क्यों? क्योंकि आपने फैक्ट्री क्यों डाली है? कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे, कम प्रोड्यूस करना चाहेंगे कि ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे? ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे। और अगर ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? फैक्ट्री को 8 घंटे चलाना चाहिए कि 16 घंटे चलाना चाहिए? 24 घंटे। So that means what? That means ultimately the key message is that for all of us to do well in life, whatever resources that we have, we got to ensure that we use these resources fully. Yes or no? Yes. तो पहला रिसोर्स जो हम सबके पास में है, and that resource is this body. Yes or no? Yes. Is this body सबके पास में है? सुनिए नहीं, सबके पास में है? Yes. So the first resource that you and I, and not only you and I, the first resource that everyone on this earth has is the body. अब आप मुझे बताइए कि आप इस बॉडी का क्या करना चाहेंगे? आप इस बॉडी को चाहेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव रहे कि आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बंद रहे? ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव रहे। So the first and foremost resource that you and I have is the body. And remember these four resources will determine as to how far do we go in our life. तो क्या करना होगा हमको? क्या करना चाहिए इस बॉडी के लिए? कुछ करना चाहिए कि कुछ करने की जरूरत नहीं है? एवरीबॉडी कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब फैक्ट्री में कोई मशीन है तो आप उसको मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके पास मोटरसाइकिल या स्कूटर है, आप उसको मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आप उसको क्यों मेंटेन करते हैं? ताकि वो बराबर चले और आगे चले, राइट? तो इसी तरह से ये जो बॉडी है, याद रखिए, अगर इस बॉडी को भी अगर आप चाहते हैं कि ये बराबर चले और लंबी चले, बराबर चले और लंबी चले, तो आपको क्या करना होगा? इस बॉडी को मेंटेन करना होगा। क्योंकि याद रखिए, जैसे एक फैक्ट्री में कोई मशीन को आप मेंटेन नहीं करो तो मालूम क्या होगा? 3 चीजें होंगी। एक तो ये कि वो मशीन का आउटपुट कम हो जाएगा, दूसरा ये कि मशीन की वो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाएगी, और तीसरा क्या होगा? वो मशीन बंद पड़ जाएगी। तो याद रखिए, दुनिया की सबसे ऑटोमेटिक मशीन और कहीं पर नहीं है, बल्कि ये हमारा शरीर है। And that's the first resource that we have. और हमको क्या करना है? हमको पक्का करना है कि हम जिंदगी भर दवाइयों का सहारा नहीं। Yes or no? Yes. आप में से कोई चाहता है कि मैं बस मुझे तो दवाइयों के सहारे जीना? हाथ ऊपर करिए। Nobody, right? So आज इस हॉल में एक कसम लेके जाएं कि कुछ भी हो जाए मैं जिंदगी में दवाइयों का सहारा नहीं लूंगा। इसका मतलब क्या है? कि मैं अपने आप को पूरी तरह से फिट रखूंगा। The resource number 2. The resource number 2 is your brain, your mind, right? Your thinking power, your power to think. आज मिस्टर मित्तल 35 साल में दुनिया के सबसे बड़े धनी बन सके। क्यों? बिकॉज ऑफ यूज ऑफ। एक चाय वाला could become the prime minister of world's largest democracy because of mind. जब से ये दुनिया बनी कितने प्रॉब्लम नहीं आए और उन सारे प्रॉब्लम्स का समाधान निकला बिकॉज ऑफ माइंड। So the second resource that you and I have is our thinking power, power to think. तो हमको क्या करना है? इस power to think का पूरा इस्तेमाल करना है। Yes or no? It means what? It means कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, never surrender, never give up. Never raise your hands, because so long as you will keep on thinking, you will find a solution. So that's your resource number 2. Resource number 3 is, somebody said, I'm very happy, somebody said from the audience, the resource number 3 is 24 hours in your day. अमिताभ बच्चन को 25 है, नरेंद्र मोदी को 26 है, सचिन तेंदुलकर 28 है। Everyone on this earth, remember, has got the same 24 hours. Same 24 hours. How you and I make use of these 24 hours will decide what kind of life we will live.
So make sure that you use these 24 hours very efficiently, very effectively, and make full use of it. The fourth resource is, you know what? Are you taking breath, all of you? Are you all taking breath? Can't hear you. Are you taking breath? Yes. Still can't hear you. Are you taking breath? Yes. Still can't hear you. Are you taking breath? Yes. Are you taking or is happening? Happening. It is happening. And thank God it is happening. You know why? Because till the time it is happening, we are there. Once it is not happening, then we are not there. So what is the fourth biggest resource that the Mother Nature gives to every one of us? The fourth biggest resource is our breath. Are you with me, everybody? Yes, sir. And remember, breath, अगर मैं आपसे पूछूं, ये breath की कितनी कीमत होगी? Anyone? आपकी जो श्वास है, इसकी क्या कीमत है? Priceless? Let me tell you a story. सिकंदर का नाम सुना है? Have you heard of सिकंदर? Let me tell you कि जो श्वास है, और देखिए कई बार अगर आपने कभी वेद पढ़े हो या कभी कोई सत्संग अटेंड किया हो या कभी कोई शास्त्र पढ़े हो, तो या कभी आपके गुरुजनों ने आपसे सवाल पूछा होगा कि आपके शरीर में आप कहाँ पर हो? You know, where are you in your body? You know that? All of you? Where are you in your body? Where? Let me tell you the value of the breath that we have. सिकंदर यूनान से निकला for conquering the whole world, and he did it. उसने पूरे विश्व को जीता और वो जीत के यूनान को वापस लौट रहा था भारत से. Unfortunately for him, he fell sick, and when he fell sick, he called all his doctors and told the doctors, do something, cure me. डॉक्टर्स ने सिकंदर को देखा और कहा कि सिकंदर, तुम्हारी हालत बहुत खराब है, तुम बुरी तरह से बीमार हो और अब तुमको बचाना मुश्किल है. तो सिकंदर ने कहा, डॉक्टर्स डू समथिंग. मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया वो यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे है. कुछ ऐसा करो, कुछ श्वासें दे दो मुझे ताकि मैं अपनी माँ से मिल सकूं और दुनिया छोड़ने से पहले अपना माथा माँ के कदमों में झुका सकूं. Do something. And the doctor said, sorry Sikandar, we just cannot do anything about it. सिकंदर ने कहा, डॉक्टर्स, मैं आपको मेरी आधी एम्पायर, I will give you half of my empire. Do something. Give me a few breaths. The doctor said, Sikandar, you talk of half of your empire. Even if you give whole of your empire, we cannot give you one extra breath. And then it is said, सिकंदर ने कहा कि काश मुझे ये मालूम होता कि इस श्वास की इतनी वैल्यू है, तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी ये विश्व को जीतने में ना गंवाई होती. अब देखिए, अगर आप सोचें आज की तारीख में, तो आपको ध्यान में आएगा कि आप सिकंदर से ज्यादा भाग्यवान हैं. आप सिकंदर से ज्यादा भाग्यवान हैं. क्यों आप सिकंदर से ज्यादा भाग्यवान हैं? क्योंकि सिकंदर को यह बात कब समझ में आई कि इसकी श्वास की कीमत क्या है, जब वो दुनिया छोड़ रहा था. और आपको यह बात कब समझ में आई? आज के दिन. तो क्या करना है? ये चौथा जो आपका जो रिसोर्स है श्वास, उसका आपको इस्तेमाल करना है. किस तरह से? उसको मेंटेन करना है. तो क्या करें? You know, develop the habit of taking deep, long breath. एक दिन में समय पक्का कर लें, सुबह या शाम, कि जब आप 5 या 10 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे. क्या करेंगे? लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे. आप सभी लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? कामयाबी होना चाहते हैं? कामयाबी होना चाहते हैं? उसके लिए आप अपने आप को पूरी तरह से कमिट करने के लिए तैयार हैं? Can't hear you at all. Can't hear you. तो देखिए, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन कब? जब आपका पूरा
कमिटमेंट होगा। तो आपको क्या करना है, तो कैन आई हैव अ कमिटमेंट फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू कि आप सब लोग आज से ही, नॉट फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम टुडे एटलीस्ट स्पेंड 5 मिनट्स इन